Yes, today we are going to start the concept of circle. Okay. Let me take one of the question from EP. Okay. Yes, Ayan. Do you know the solution now or you want to discuss? Discuss. Uh, okay, let's discuss. So I'm just reading the question. Okay. I'm not writing everything. Yes, everyone, please focus. Okay. A school auditorium we are having. A school auditorium was to be constructed to accommodate at least 1500 people. Okay, total 1500 people we want to accommodate in a school auditorium. Okay, a auditorium was supposed to be constructed which can accommodate 1500 people. Okay, that's what given in the question. The chair are placed in concentric circular arrangement. In circular arrangement, the chair are placed. Okay, here, chair, like this. Okay, total 1500 people we want to accommodate in a auditorium. Okay, and the chairs are placed in a circular manner. Okay, one more statement is given over here, which is very important. The chairs are to be placed in concentric circular arrangement in such a way that each succeeding. Okay, AP I have not discussed over here, so I think it will not make sense to few student. Please wait. Okay, I am starting. This is from AP. Ma'am, which chapter are we doing right now? We are going to start circle today. Okay. Yes, anyone having any preference? Do you have any upcoming test or exam? Okay, a auditorium is supposed to be constructed which can accommodate 1500 people. Okay, the chair are placed in concentric circle. Concentric circle means like one circle, another circle, all are having the same circle. All are having the same center. Okay, it doesn't looks like that in my figure, but such a like two three circles having the same center, that's called concentric circles. Okay, if I'll draw one more circle, if I'll draw one more circle, but all are having the center only. Okay, that's called concentric circle. If you will just press the needle of the compass at any point and you will keep on drawing one circle, then stretch it, then another circle, then stretch it or compress it, then another circle, and the needle will be at same place. Okay, then you will be getting such concentric circles. Okay,
So the chair are to be placed in a concentric circular arrangement in such a way that each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one. Succeeding means the next one is having 10 more than the previous one. Okay. So here this question is from AP. Okay. If you don't know anything about arithmetic progression, arithmetic sequence, please just be here. I'll be finishing it just now. Then we'll be starting circles from the basics. Okay. So the succeeding term is 10 more than the previous term. Okay. If first term is x, then next one will be x plus 10. Then next one will be 10 more than this one. 10 more than this one. Okay. This is how the arrangement is there. Like that, how many people we want to accommodate? 1500. So total, of course, 1500 seats must be there. Okay. For each person, one seat must be there. Okay. That's what happened in auditorium, right? If the first circular row has 30 seats. Now the first part of the question says, Ayan, that first circular row has 30 seats. Okay, how many seats will be there in the 10th row? 10th row, how many seats will be there? So can you see, Ayan, that A is given as a 30. Common difference is already given that there is a gap of 10. Yes or no? Yes. Okay, and 10th row means N is 10th. 10th row. AN we have to find. That means A10 we have to find. That is the formula A plus N minus 1 into D, and you will be getting the 10th row. Getting it or not? How many seats will be there? Ayan? Yes, ma'am. Okay, 9 came from N minus 1. So from here you will be getting the first part. Now the next part says that if there were 17 rows in the auditoriums, total how many rows are there? 17 rows are there. Okay. Total 17 rows are there. First row is containing 36. That was given in the first part. Okay, this is the second part. Maybe we'll be using it, or without using it, we can calculate. Let's check it. So there were 17 rows in the auditorium. Total number of term given as a 17. Okay. Total number of term given as a 17. Okay. The first is representing the first row. The second term is representing the number of seat in the second row. Third is representing the number of seat in the third row. Fourth is representing the number of seat in the fourth row. Like that, total how many rows are there? 17 rows are there. That means 17 terms are there. Okay, total number of terms. How many seats will be there in the middle row? So if total in an AP Ayan, total 17 terms are there, then what will be the middle term? Can you tell me? If suppose suppose in a morning assembly, total 17 students are there. Okay, I'm just creating a like row, okay, of 17 student. Then can you tell me like what will be the middle one? What place will be the middle one? So can we say that 17 means 8 people here, 8 seats here, not people, seats. 8 seats here, 8 seats here, 8, 8, 16, and 1 will be in the middle. That is 17. Yes or no? Yes. Okay, that means ninth place. Yes, ninth place from the first. Are you getting it?
Yes, If ma'am. you are not getting, then in such question you can draw 17 lines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, like that 17, and then you can count that which one is the middle one. You will find that ninth place is the middle one. Okay, ninth place is the middle one, and that's what you have to find it. Okay. Again, we know the common difference D is 10. Okay. A we know that is 30, and that we can use for finding the ninth term. Getting it, Ayan? Yes, ma'am. Okay. Now the next one is for 1500 seats in the auditorium. How many rows are needed? The number of term it is asking. Okay. If Sn is given as a 1500, then it is asking for number of term n. Okay. It is asking for n. N we don't know. N we have to calculate from here. Yeah, but we know A. A is 30. We know the common difference. D is 10. And from here we'll be getting one equation which will contain n. Maybe that equation can be quadratic equation also. But we will be able to find n. Right, Ayan? Yes, Got it? yes, Okay. Now the next one is, if 1500 seats are to be arranged in the auditorium, how many seats are still left to be put after 10th row? Okay, so sum of 10. Okay, this all the 10 rows that we'll be finding. What is the sum till 10th, and what is the sum from here? Whatever row you have got, suppose 20 rows are needed, 30 rows are needed, 17 rows are needed, 25 rows are needed, whatever rows are needed to accommodate 1500 person. Okay, n value, suppose from here you are getting whatever n value you are getting. Okay, sum of that n you have to find, sum of 10 you have to find, and then you have to do the subtraction between these two to get that 10th row, 10th place tak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10th place तक, मतलब 10th row तक कितने people already accommodate हो गए. Okay, without even checking this you can check 10th row तक कितने people accommodate हो गए by finding S10. Okay, जो भी हमारा S10 आया उससे 1500 में से subtract कर देंगे. Getting it? Let me check whether it is asking about the row or what. How many seats are still left? Okay, seats बस पूछ रहा है. तो टोटल कितने सीट्स है? 1500. 10th रो तक कितने सीट्स फिल हो चुके हैं और बचे कितने हैं? तो पहले देखेंगे 10th रो तक कितने फिल हो चुके हैं. यहाँ S10 जैसे ही हमने फाइंड किया हमें पता लगेगा, अच्छा 10th टर्म तक का सम ये है, मतलब इतने लोग, इतने सीट्स ऑलरेडी अकोमोडेट हो गए और बचे कितने हैं 1500 में से माइनस जैसे ही हम करेंगे हमें बचा हुआ सीट्स मिल जाएगा. यस और नो? गेटिंग इट आयान? yes, यस. क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर हम ऑडिटोरियम में गए और हमने देखा कि 10th रो तक फिल है, मतलब कितने सीट्स बचे हैं, तो मैं क्या बोल रही हूँ, सम ऑफ 10 टर्म्स फाइंड कर लेते हैं. जो भी निकलेगा हमारा सम ऑफ 10 टर्म्स उसे 1500 से माइनस कर देंगे, उतने सीट्स बचे होंगे. एम आई मेकिंग सेंस नाउ? Getting it, Ayan? Is it clear now? Okay, so today we are supposed to start the concept of circles. Any confusion, Ayan, please let me know, okay? Today we are going to start circles, okay? So in circle, like this shape is already known to you. It's a two-dimensional shape. Whenever I am saying circle, circle का मतलब है a circular plate type of structure. It's not 3D, it's 2D. अगर मैं एक A4 शीट लेके एक सर्कल काट लूं, that's called circle.
Okay, that's called circle. It's a 2D figure. Okay, so we are talking about a flat surface, a two-dimensional shape, circle over here, not a sphere, circle. Okay, so in circle, suppose you are having here, basically you will be learning about the tangent to a circle. Suppose we are having a circle and we are having a straight line. Okay, a straight line we are having and a circle we are having. Yes, everyone, please focus over here. We have started a new concept over here. Suppose you are having a circle and a straight line, then the chances are, कैसे एक हमारे पास अगर सर्कल हो और एक स्ट्रेट लाइन हो तो इसे कैसे प्लेस कर सकते हैं? तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज. ये जो स्ट्रेट लाइन है उसे सर्कल के साइड में रख सकते हैं. ओके, या फिर ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे सर्कल के ऊपर ऐसे ऐसे कुछ रख सकते हैं. ओके, या फिर ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे सर्कल के साथ ऐसे कुछ रख सकते हैं. ओके, नाउ दीज थ्री इसके अलावा और कोई भी केस नहीं जनरेट हो सकता. लेट मी टेल यू. ओके, फर्स्ट सिनेरियो इज कॉल्ड the first case where we have just kept the straight line aside. That's called non-intersecting line. ये जो लाइन साइड में है सर्कल के, ऐसे लाइन को हम क्या कहते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. ऑफ कोर्स ये लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो ऑफ कोर्स इसका नाम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ही होगा. नेक्स्ट वन, ये जो लाइन है ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे. ऐसे लाइन को हम सेकेंट बोलते हैं. तो आज के बाद से जब भी मैं सेकेंड बोलूं तो ध्यान रखना कि मैं एक ऐसे लाइन की बात कर रही हूं जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे. ओके, दैट सच अ लाइन इज कॉल्ड सेकेंड. एंड जो लास्ट वाला केस है दैट्स कॉल्ड टैंजेंट टू अ सर्कल. ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए. ओके, ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके निकल जाए, ऐसे लाइन को हम टैंजेंट टू अ सर्कल बोलते हैं. सो जब भी मैं टैंजेंट बोलूं ध्यान रखना, टैंजेंट का मतलब है एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है. ठीक है. सेकेंड का मतलब है एक ऐसा लाइन जो सर्कल को पूरा कट कर रहा है, मतलब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, the word is like from this terminology it's clear to us that the line is not intersecting the circle. Okay, so these are the three terminologies. now ये जो सेकेंड है यहां से ही हमें कॉर्ड मिलता है. ध्यान से देखो, कॉर्ड का मतलब क्या होता है? एक सर्कल में अगर हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करे ऐसे. Okay, or you will be taking or you can take any 2 point on the circle, and if you will join them you will be getting a chord of the circle. Right? Yes or no? Yes. Okay, so chord क्या है? just when we are joining 2 point on the circle we are getting a chord. and second का मतलब क्या है? जब यही chord को हम extend कर देंगे और बोलेंगे कि ये एक लाइन है तो ये क्या बन जाएगा? सेकेंड. ओके, so second का मतलब है a straight line which is intersecting the circle at 2 point. सेकेंड से ही हमें कॉर्ड मिला है या फिर कॉर्ड से ही हमें सेकेंड मिला है, ऐसा भी हम कह सकते हैं. ओके, कॉर्ड को एक्सटेंड करेंगे दोनों साइड से तो जो लाइन क्रिएट होगा उसे ही सेकेंड बोलते हैं. और अगर हमने सेकेंड को कट कर दिया, ओके, दोनों साइड से कट कर दिया तो हमें कॉर्ड मिल जाएगा. तो जब भी बोले ये जो कॉर्ड है इसका करेस्पॉन्डिंग सेकेंड, मतलब ध्यान में रखना अगर कहीं स्टेटमेंट ऐसा हो कि हमारे पास एक सेकेंड है, सपोज ओके अ सेकेंड है, इसका करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या होगा? यहाँ पे अगर नेम भी दिया हुआ है और बोले इसका करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या होगा, तो ध्यान से देखो यहाँ एक कॉर्ड भी जनरेट हो रहा है जिसका नाम है AB. ओके, तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज जस्ट यू नीड टू नो. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अगर टैंजेंट हमें समझ में आता है
तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सर्कल पे कितने टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ है सर्कल इस, और हर एक पॉइंट पे एक टैंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। Tangent का मतलब, again I am reminding, tangent means such a straight line which is touching the circle at one and only one point. तो एक सर्कल में कितने tangents हम बना पा रहे हैं? Infinite tangent हम बना सकते हैं इस सर्कल में. Okay? In this circle we can draw infinite tangent. Okay? Maybe my figure is wrong. Okay, I am trying to show that it is touching the circle at one point only, which will be the case. ऐसा नहीं हो सकता कि एक टैंजेंट है और वो 2-3 पॉइंट को टच करके निकल जा रहा है, नो. ओके, सो टैंजेंट का मतलब यही होता है, सच अ स्ट्रेट लाइन विच विल टच द सर्कल एट वन पॉइंट. और एक सर्कल में कितने टैंजेंट बना सकते हैं? इनफाइनाइट टैंजेंट बना सकते हैं, इनफाइनाइट टैंजेंट बना सकते हैं. बट एक अगर पॉइंट स्पेसिफाई मैं कर दूं एंड मैं बोलूं पॉइंट ए पे ही टैंजेंट बनाना है, अब बताओ कितने टैंजेंट बनेंगे? So the answer will be one and only one tangent is possible at a point A. A point पे और कोई दूसरा tangent बन ही नहीं सकता है, और जो भी लाइन हम बनाएंगे वो tangent तो नहीं होगा. ओके, वो tangent तो नहीं होगा. ठीक है, एक पॉइंट अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए तो उस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही tangent बन सकता है. ओके, इफ यू विल ट्राई ड्रॉइंग you will find that it will just go like this and all. Okay, तो एक पॉइंट अगर स्पेसिफाई है तो उस पे एक ही टैंजेंट बन सकता है, लेकिन एक सर्कल पे पूरे कितने टैंजेंट्स बन सकते हैं? तो पूरे इनफाइनाइट, so many tangents are possible because so many points are there on the circle, hence infinite tangents are possible. ओके, तो असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन में, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन में ध्यान से फिल करना. अगर बोले हाउ मेनी टैंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल, योर आंसर विल बी इनफाइनाइट. एंड इफ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टैंजेंट्स कैन बी ड्रॉन at a particular point, maybe at point P, at point Q, at point A, then the answer is one and only one tangent. Am I making sense to all of you? आ रहा है समझ में सबको? Yes, sir. Okay, now चलो हम एक एक्टिविटी करते हैं. क्या करेंगे? एक सर्कल लेंगे, इस सर्कल में एक कोई पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं. लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली फर्स्ट. लेट्स टेक अ सर्कल, लेट्स स्पेसिफाई अ पॉइंट P. ओके, हमने क्या किया? एक सर्कल लिया और एक पॉइंट P पे हमने क्या किया? एक वायर को टाई कर लिया. ओके, मैं अभी दिखा रही हूँ. ओके, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सपोज हमने इस पॉइंट P पे एक वायर को ऐसे ऐसे बांध लिया. ओके, एक सर्कुलर रिंग लिया हमने, उसमें एक पॉइंट P स्पेसिफाई करके वहीं पे वायर या फिर स्ट्रेट लाइन एक टाई कर लिया. द वायर, ओके, विच लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन वी हैव टाइड. तो क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि ये जो वायर है जिसे हमने सर्कल से टाई कर रखा है किसी सर्कल से, ये तो मूव करेगा. ये तो मूव करेगा. क्यों मूव करेगा? क्योंकि हमने तो इसे सिर्फ एक ही पॉइंट पे ऐसे टाई किया है, तो ये तो ऐसे ऐसे मूव करेगा. हाँ या ना? Yes, ma'am. इट विल मूव. ओके, ये तो मूव करेगा. अभी तो ये सेकेंड जैसा दिख रहा है, राइट? अभी ये जो मैंने वायर बनाया है सर्कल के ऊपर, ये तो सेकेंड जैसा दिख रहा है, राइट? आर यू गेटिंग इट? क्या Yes, ये अभी सेकेंड जैसा दिख रहा है? ऑफ कोर्स सेकेंड जैसा दिख रहा है. Yes, ma'am. सेकेंड का मतलब ही क्या होता है? सेकेंड का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को ऐसे ऐसे दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे. तो अभी तो ये जो लाइन है ये तो सेकेंड है. बट ध्यान रखो कि अगर मैं इसे थोड़ा सा ऐसे मूव कर दूं और थोड़ा मूव कर दूं, तो क्या कुछ ऐसा हमारा फिगर दिखना शुरू हो जाएगा? थोड़ा सा मैंने इसे क्या किया? मूव किया.
ओके, ये जो हमारा लाइन था इसे थोड़ा सा मैंने मूव किया, मैं यहीं पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। मैं सेम वायर को विदाउट रब किए थोड़ा सा मूव अगर करूंगी तो क्या ये कुछ ऐसा दिखेगा, हाँ या ना? यस और नो? विल इट लुक लाइक दिस? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. previously Yes. we were getting the point of intersection as P and Q. Now when I moved this wire, little bit I have moved, the point is P and suppose R. Okay, now again I am going to move in this manner only. So थोड़ा और मैंने ऐसे ऐसे थोड़ा और मूव कर दिया, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, अभी भी ये सेकंड है, ध्यान से देखो, अभी भी ये सेकंड ही है। ओके ओके, यहाँ पे सपोज ऐसे मैंने अब क्या किया, और थोड़ा ऐसे मूव कर दिया, तो अब ये कैसा दिखेगा? अब ये कुछ ऐसा दिखने वाला है, लेट मी टेल यू। कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखो। Wait. Yes, this is how it will look. I'm talking about the blue color line, this blue. Okay, focus the blue color line. And I'm going to write a statement now that tangent is nothing but the, can you see when previously it looked like a second, I just move little bit, I move again, I move again, and it has taken the shape of tangent. Can you see this blue color line looks like a tangent, yes or no? It looks like a tangent, right? Okay, and then from here I am writing tangent is a special case of secant. When both the endpoints coincide. tangent क्या है? tangent कहाँ से मिला हमें? tangent हमें सेकंड से ही मिला, जब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था ये क्लोजर 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 आते आते एक दूसरे पे लाई कर गया, तो हमें tangent मिल गया। Tangent is nothing but just a special case of secant when both the point, which point? Both the end point. End point means this two point of intersection. Previously it was PQ, then it became PR, then it became PS, and now it is just P. कहाँ से मिला tangent? ये secant का ही एक स्पेशल केस है, जिसमें जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले हमें मिल रहे थे वो क्लोजर आते गए आते गए आते गए आते गए और एक दूसरे पे ही लाई कर गए, तब हमें टैंजेंट मिल गया। एम आई मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? एम आई मेकिंग सेंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके, तो ये सारे स्टेटमेंट ऐसे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मे बी हम यूज ना करें, लेकिन ये सारे स्टेटमेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में जरूर ऐसे स्टेटमेंट लिखे होते हैं कि tangent are special case of secant. Is it true? Is it false? So we will say yes, it is true. Okay, when both the end point coincide, then we are getting the tangent. Let's move. We'll be doing few more activities. अब हमने क्या किया? Yes, till now everything is clear. क्योंकि अभी अगर कोई डाउट आएगा और अभी अगर नहीं पूछ पाए तो फिर वो डाउट क्या होगा, बिल्डअप होते जाएगा और बहुत फिर पूरा चैप्टर नहीं समझ में आने वाला है। तो एक एक करके बता दो। इफ्रा गॉट इट, अलवीना गॉट इट, अब्दुल गॉट इट? Yes, ma'am. Okay, let's move. Yes, Abdul, are you getting it? Yes.
ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी। अभी तक हमने क्या सीखा, मैं समराइज कर दे रही हूँ कि हमारे पास अगर एक सर्कल हो और एक लाइन हो, तो पॉसिबिलिटी है कि लाइन सर्कल के साइड में लाइन लाइक ऐसे जस्ट साइड में लाई करेगा, उसे हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और जब लाइन सर्कल के ऊपर पूरा ऐसे इंटरसेक्ट करेगा दो पॉइंट्स पे, उसे हम सीकेंट कहते हैं। और जब लाइन सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके निकल जाए तो उसे हम टैंजेंट कहते हैं। और हमने क्या सीखा यहाँ पे, और हमने ये भी सीखा कि अगर एक सर्कल है और इस क्वेश्चन ये रहे कि कितने सारे टैंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो बहुत सारे टैंजेंट, इनफाइनाइट टैंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पॉइंट ऐसे पॉइंट दिखा के बोले कि इस पॉइंट ए पे कितने टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो हम बोलेंगे सिर्फ एक ही टैंजेंट पॉसिबल है इस पॉइंट ए से। ओके, ये अभी तक हमने इतना डिस्कस किया। और हमने ये भी डिस्कस किया अभी कि एक सर्कल है अगर हमारे पास, ठीक है, और उसमें हमने सेकेंड देखा, तो हमने ये रियलाइज किया कि सेकेंड सेकेंड से ही हमें टैंजेंट मिल गया। सेकेंड को हमने जैसे ही मूव करना शुरू किया, हमें पता लगा कि ये जो सेकेंड है, इनमें जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे वो क्लोज आते गए आते गए आते गए आते गए, और सेकेंड से ही हमें टैंजेंट मिल गया। तो टैंजेंट कहाँ से मिला, टैंजेंट इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड व्हेन बोथ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोइंसाइड का मतलब होता है एक दूसरे पे लाई कर रहे हैं। अब तक हमने इतना ही डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और इसमें अगर हमने एक, ध्यान से सुनना, अगर इसमें मैंने एक सेकेंड ड्रॉ कर दिया, ओके, अगर एक सेकेंड ड्रॉ कर दिया, तो इस सेकेंड के पैरेलल कितने सारे टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अगर हम एक सर्कल में एक सेकेंट है हमारे पास, कैसा भी दिखे, ओके, सेकेंट कैन लुक लाइक एनीथिंग। नाउ द क्वेश्चन इज, उस सेकेंड के पैरेलल कितने टैंजेंट पॉसिबल है, कितने सारे टैंजेंट हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, जो इस ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ए बी, इसके पैरेलल होना चाहिए। ऐसे कितने टैंजेंट पॉसिबल है, तो हमारा आंसर होगा ऐसे सिर्फ दो ही टैंजेंट पॉसिबल है, एक वन टुवर्ड्स द राइट एंड वन टुवर्ड्स द लेफ्ट। एक सीकेंट अगर है हमारे पास कैसा भी दिखने वाला, उसके पैरेलल हमें पूछे कि कितने टैंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो दो ही पैरेलल टैंजेंट्स पॉसिबल है। या फिर अगर सीकेंट ना भी दे, तो पूछे कि एक सर्कल में कितने पैरेलल टैंजेंट्स पॉसिबल है, तो एक बार में हम दो पैरेलल लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये जो लाइन है ए बी, ये सी डी के पैरेलल है और ये दोनों टैंजेंट है। और भी कोई टैंजेंट, लेट्स ड्रॉ few more tangent which will be parallel to AB and CD। चलो कुछ और टैंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं जो AB और CD दोनों के पैरेलल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अभी मैं क्या बता रही थी कि अगर हमारे पास एक सर्कल में एक सेकेंड है, कुछ ऐसा दिखने वाला लाइन, इसे भी सेकेंड कहते हैं। ओके, और भी मैं एग्जांपल दूंगी, इसके पैरेलल कितने टैंजेंट्स बना सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ दो ही टैंजेंट इसके पैरेलल बना सकते हैं, एक towards this side, okay, one towards the left, one towards the right, or one towards the up, one towards the down, like that। okay, ये जो सेकेंड है, इसे मैं सेकेंड बोल रही हूँ, बार बार ध्यान में रखना, इसके पैरेलल कितने टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैक्सिमम दो ही टैंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं जो इस लाइन के पैरेलल होगा। ओके, ये भी एक स्टेटमेंट है, कहाँ से मिला, ऑब्जर्वेशन से मिला हमें, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, now just a second, suppose we are having a circle, okay, you must have seen the bicycle's wheel
कुछ ऐसा दिखता है। बाईसाइकिल का व्हील कुछ ऐसा दिखता है, राइट? राइट, Yes, ma'am. ओके। एंड व्हेन इट मूव ऑन द ग्राउंड, तो ये जो ग्राउंड है क्या टैंजेंट लाइन की तरह दिखता है? जब बाईसाइकिल का व्हील ग्राउंड पे मूव करेगा तो क्या ग्राउंड एक टैंजेंट लाइन की तरह बिहेव करता है? यस, यस, ये एक टैंजेंट लाइन की तरह ही तो बिहेव करता है, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाता है, राइट? ओके, नाउ दिस इज द पॉइंट, and yeah, this point is very special point. This point's name is point of contact. टैंजेंट पे एक ऐसा पॉइंट होता है जो सर्कल को टच कर रहा है, और उस पॉइंट का नेम क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो अभी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। थोड़ी देर के बाद अगर ये व्हील यहां चला गया, कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तब तब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होगा। अभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, थोड़ी देर बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी होगा। यस और नो? तो हमारे रियल लाइफ में ये एक एग्जांपल है टैंजेंट लाइन का। जब व्हील ग्राउंड पे मूव करता है तब हम देख पाते हैं कि ग्राउंड टैंजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो क्या हमें ये दिख रहा है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये ग्राउंड द टैंजेंट के साथ कुछ 90 डिग्री टाइप दिख रहा है। यस और नो? राइट, राइट। ये जो हमारा ब्लेड है, साइकिल का स्पोक्स है व्हील का, ओके, ये ग्राउंड के साथ, दैट मीन्स टैंजेंट के साथ ऐसा लग रहा है कि 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है, राइट? ओके, थोड़ी देर बाद अगर ये दूसरा ब्लेड है, ये अगर यहाँ आ जाता है तो ऐसा लग रहा है ये जो वर्टिकल वाला है ये तो 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, राइट? ऐसा दिख रहा है हमें। स्टिल आई एम नॉट सेइंग इट इज ट्रू, ऐसा दिख रहा है, राइट? यस और नो? Yes. ओके, नाउ वी विल प्रूव इट ऑल्सो कि हाँ ये 90 डिग्री ही है। अभी तो ऐसा दिख रहा है लेकिन वी आर गोइंग टू प्रूव इट दैट इट्स ट्रू। ओके, कैसे प्रूव करेंगे चलो देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि एक पॉइंट है, पॉइंट पी, इस पॉइंट पी का एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ओके, द नेम इज एम एन। इस पॉइंट पी का स्ट्रेट लाइन एम एन से डिस्टेंस निकालो। We are having a point P, we are having a straight line MN, and I am telling you, please find the distance of a point P from the straight line MN. Distance of a point P from the line MN. Which distance you will be telling me? This distance, this distance, this distance, this distance, which distance? If I am telling to all the students from here, whoever is sitting, that please find the distance, okay, distance of P, distance of point P from MN. If I'll tell you to find, how you will be finding the distance? Are you going to tell me the distance this PA or PB or PC or this PQ? Which distance?
if this is how you will be finding the distance, then one of the student will come and tell me the distance is 12 centimeter. Another student tell me no, I got 10 centimeter. One of the student from here tell me no, but I got 11 centimeter. तो मैं कौन सा डिस्टेंस लूं? अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है तो कौन सी वाली डिस्टेंस लेंगे? क्या ये आंसर ऐसे ही चेंज होते रहेगा? नो. Whenever we are talking about the distance, we will be taking the perpendicular distance. Why? Because that is the shortest distance. Shortest distance is called perpendicular distance. Keep it in mind. It's not about this topic. It's about throughout the mathematics. Whenever any time you will be finding the distance of a point from a line, you will be finding the perpendicular distance. Why perpendicular distance? Because that is the shortest distance. That's why in coordinate geometry chapter, you used to think like this. If there is a point P whose coordinate is 3, 2, then you used to drop the perpendicular on the x-axis, and you used to drop the perpendicular on the y-axis, and then you used to tell that the distance is this and that. Okay, just a second. Okay, that's why that time you used to drop the perpendicular distance, and then you used to say this much is 2 and this much is 3. Okay, because perpendicular distance is the shortest distance. Getting it? आज के बाद से ध्यान में रखना, अगर किसी पॉइंट का किसी लाइन से कभी भी हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो, okay, then we will always be talking about the perpendicular distance. क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. और यहाँ पे हम देख भी पा रहे हैं कि जितने भी लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करें, ये जो परपेंडिकुलर वाला है ये ही सबसे छोटा दिख रहा है, दिख भी रहा है, एंड इट इज ट्रू ऑल्सो. ओके, तो इसीलिए अब अगर ये समझ में आ गया तो चलो प्रूफ करते हैं कि सर्कल में कितने रेडियस होते हैं. बहुत सारे रेडियस होते हैं. ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है. फर्स्ट टेल मी, इज इट क्लियर सो फार दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? Yes. ओके, नाउ एक सर्कल में कितने रेडियस होते हैं? बहुत सारे रेडियसेस हम ड्रॉ कर सकते हैं. बट अगर एक सर्कल में मैंने एक टैंजेंट लाइन ड्रॉ किया जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, ओके, क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस टैंजेंट का P है. ओके, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस पास करेगा, ये जो रेडियस है ये यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट करेगा. क्यों? क्यों? चलो देखते हैं क्यों. चलो लेट्स सी, यहाँ पे सेंटर O है. इस सेंटर O का अगर हम यहाँ इस टैंजेंट AB से डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं. ओके, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रही हूं. सेंटर O का स्ट्रेट लाइन AB से डिस्टेंस फाइंड करना है. चलो देखते हैं कौन से वाला डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं. अगर हमने यहां एक पॉइंट ले लिया M, और अगर हमने OM फाइंड किया, तो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि ये रेडियस से तो बड़ा ही होगा? हाँ या ना? सेंटर O का स्ट्रेट लाइन AB से हमें डिस्टेंस फाइंड करना है. ओके, अगर कहीं पे हमने पॉइंट M ले लिया और OM फाइंड करने अगर हम बैठे, तो क्या हम ये देख पा रहे हैं दैट इट इज ग्रेटर देन R? कैन वी सी दैट? क्यों? वाई इट विल बी ग्रेटर देन R? क्योंकि एक सर्कल है, इसके बाहर किसी पॉइंट से अगर सेंटर का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये तो हमेशा ही रेडियस से बड़ा होगा ना. हाँ या ना? यस और नो?
सर्कल के बाहर का कोई भी पॉइंट ले ले, उसका डिस्टेंस अगर ये जो सेंटर है यहाँ से फाइंड करने की कोशिश करे तो ये रेडियस से तो बड़ा ही होगा ये डिस्टेंस, राइट? एम आई मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? अगर हमारे पास एक सर्कल है और मैं बोल रही हूँ कि यहाँ रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट सर्कल के बाहर है क्यू, इसका डिस्टेंस सेंटर से 5 से तो बिगर ही होगा ना? Yes or no? OQ is bigger than 5. Can we say that? Can we? Yes. Of course. Of course. क्योंकि ये जो पॉइंट है Q, ये सर्कल से बाहर लाई कर रहा है और रेडियस का मतलब होता है जस्ट सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट। तो सर्कल के बाहर क्या हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो रेडियस से बड़ा होगा। अगर मैं बहुत पास एक पॉइंट ले लूं तो भी वो रेडियस से बड़ा होगा, हाँ या ना? हाँ, होगा। Are you getting it, everyone? I'm trying to say this. OM is also bigger than 5. Is it so? Is Yes. it so? No. This OM is not bigger than 5? It's smaller. Is it smaller? I think so. Equal. क्यों इक्वल? यहाँ O से यहाँ तक इतना डिस्टेंस ही 5 है और देखो M थोड़ा सा आगे है, दिख रहा है? Oh, yes. सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर सेंटर से जोड़ दे तो उसे ही रेडियस बोलते हैं। अगर सर्कल के ऊपर का कोई भी पॉइंट सेंटर से हम ज्वाइन करें, ये सारे ही रेडियसेस है, ये सारे सर्कल के रेडियस कहलाते हैं। ओके, किसी भी पॉइंट को हम ज्वाइन करें, ऐसा नहीं है कि जो डॉट मैंने बनाया उसे ही। मैं देख लो ध्यान से, मैं कहीं भी ज्वाइन कर रही हूँ एंड आई एम टेलिंग दिस ऑल आर जस्ट द रेडियस। तो सर्कल से बाहर लाई करने वाले हम कोई भी पॉइंट लें, कितना भी पास ले ले, अगर वो बाहर लाई कर रहा है तो वो रेडियस से बड़ा होगा। डिस्टेंस जो होगा सेंटर से उस पॉइंट का रेडियस से ज्यादा होगा। एम आई मेकिंग सेंस? हाँ या ना? गेटिंग इट? यस स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग इट? Yes. सर्कल के बाहर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट कितना भी पास हो, सर्कल के बहुत क्लोजर भी हो, लेकिन अगर वो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई नहीं करता है, देखो अगर मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूं तो यहाँ पे थ्री 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 मेरा स्क्रीन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक सर्कल के इनसाइड का पोर्शन, सोचो कि मैंने इस स्क्रीन पे एक बैंगल रख दिया, तो एक इनसाइड वाला पोर्शन हमें मिला, एक ऑन द सर्कल वाला पोर्शन मिला, ऑन द सर्कल, और एक आउटसाइड वाला सेक्शन मिला हमें। ओके, अब सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट सेंटर से ज्वाइन कर दे, सपोज दिस सेंटर इज O, अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है P, उससे सेंटर से ज्वाइन कर दे तो ये रेडियस से छोटा होगा। अगर सर्कल के ऊपर ऑन द सर्कल अगर कोई पॉइंट है, उसे उसे सेंटर से जैसे ही हम ड्रॉ करते हैं हमें क्या मिलता है? रेडियस। ये सारे ही रेडियस है, ये सारे जितने भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये सारे रेडियस है। और अगर सर्कल के बाहर वाला कोई पॉइंट सेंटर से ज्वाइन करे तो ये क्या होगा? रेडियस से बड़ा होगा, ऑफ कोर्स बड़ा होगा, क्योंकि हम सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं और सर्कल के ऊपर नहीं रुक रहे हैं, बाहर जाके रुक रहे हैं। ऑफ कोर्स ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया पर्पल वाला, ये रेडियस से तो बड़ा ही होगा। एम आई मेकिंग सेंस? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर सो फार? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि दिस वन, अगर अगर हमने इस सेंटर O से, focus on this figure, I mean this one, okay, this one, अगर हमने सेंटर O से इस टैंजेंट
का डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट ओ से स्ट्रेट लाइन ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो हम बहुत सारे डिस्टेंसेस के बारे में सोच रहे हैं अभी। तो ओ एम के बारे में हमने सोचा, हमें लगा नो, ओ एम तो बड़ा है किससे, ओपी से, दिख रहा है हमें, क्योंकि ओपी क्या है, रेडियस है। ओ एम ऑफ कोर्स इट इज बिगर, ये जो पॉइंट एम है सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। अब थोड़ा और क्लोजर लेके चेक कर लेते हैं। चलो एक पॉइंट एस ले लिया, इसे सेंटर से ज्वाइन करके देखते हैं क्या ये ओपी से छोटा है। तो नहीं, OS इज ऑल्सो बिगर देन OP, वी कैन सी दैट। चलो कोई और पॉइंट लेके चेक कर लेते हैं। यहाँ कोई पॉइंट R ले लेते हैं, उसे सेंटर से ज्वाइन करके चेक करते हैं। देन दिस इज ऑल्सो, OR इज ऑल्सो बिगर देन OP। तो क्या हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ OP सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? यस, हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ हमें ये दिख रहा है, अगर एक सर्कल और रेडियस बस इतना ही सोच रहे हैं अगर हम, तो हम ये देख पा रहे हैं कि ओपी तो सबसे छोटा डिस्टेंस है यहाँ पे। इसका मतलब ओपी परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ही परपेंडिकुलर